everyone, so welcome back to my channel. In this video, as you know that I'm going to share some phrasal verbs. I usually try to find out easy phrasal verbs which I can quickly learn and just start speaking, because somehow we know that the only execution that we can do with the help of different learnings is that while speaking we can practice our those learnings. And first 3 times you will feel that you are not grasping all those, you are not able to collect all those in your mind, you are just reading out and nothing is coming out of as a outcome. But you will see after time, like it will take time, but later you will see that yes, I've improved a lot and so many things have changed. While I'm speaking, I don't know, passively some things are coming into my conscious subconscious mind and I'm just speaking it out of my mouth, and that is very much random, and you have to just keep on learning and just executing and using all those learnings into your spoken. And it is very much difficult for someone who have not tried it before, but if you will try to do it, you will do it. जब हमें लग रहा है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें शक हो रहा है कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उस चीज़ को करना चाहते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि यार टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू विल डू इट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. When my friend asked me that which movie have you seen last night, I was literally about to say that movie name was on the tip of my tongue, but I was unable to remember. I just want to tell you the whole story of the last day. What happened and how is that started. Now I just want to say that long story short, I was beaten by my brother. When you are taking a difficult decision या फिर आपको difficult decision लेना है तो आप बोलते हो it's a difficult one, तो आप बोलोगे it's a tough call and you have to take it. When your boss says this, get your act together, otherwise I'll have to take strict decision against you. When your friend has not succeeded in something and he's just struggling with the failure, and then you can say to him that you win some, you lose some, it's okay, you will just keep on going and you will see that after some time you will get it. बहुत ही, जब कोई काम बहुत ही इम्पॉसिबल है और जो हो ही नहीं सकता है, तब हम बोलते हैं when pigs fly. इट इज़ पॉसिबल जस्ट व्हेन पिग्स फ्लाई. दैट मीन्स ये काम तभी पॉसिबल है जब आपने देखा है कभी कि पिग फ्लाई करते हो, नहीं करते ना, तो फिर वो कभी फ्लाई नहीं करेंगे और ये कभी इंसान सुधरेगा नहीं, तो इसलिए इसे यूज़ करते हैं कि ही विल ओनली चेंज व्हेन पिग्स फ्लाई. किसी तरीके का मिसअंडरस्टूड ना कर ले कोई, या फिर आप जो बोल रहे हो उसको गलत मिस इंटरप्रेट ना कर ले, तो इसलिए आप बोलते हो डोंट गेट मी रॉन्ग बट दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, डोंट टेक इट अदरवाइज. जब आपने देखा है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर जगह काम करते हैं, ऐसे गाइडलाइंस होती हैं जो हमेशा ज़्यादातर काम की होती हैं, तब हम बोलते हैं इट्स अ रूल ऑफ थंब. इट मीन्स कोई चीज़ जिसको आप बदल नहीं सकते, इट्स अ रूल ऑफ थंब, ये सबके लिए एक जैसा है. जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ऐसी कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है, सब अवॉइड करते हैं उस चीज़ को, तब हम बोलते हैं देयर इज़ अ एलिफेंट इन द रूम. आप पूरी रात जाग करके अपनी फाइल बना रहे थे या पूरी रात जाग कर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे थे, तब हम उसे कहते हैं कि पुल एन ऑल नाइटर. आई वाज स्टडिंग होल नाइट, आई पुल्ड एन ऑल नाइटर. माई फ्रेंड डिडंट स्टॉप टू टॉक एंड शी जस्ट kept on talking and I just chewed the fat last night. ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं बोलूँगी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई एम इन हॉट वाटर. नाउ सिंपलेस्ट फ्रेजल वर्ब जैसे कि ब्रेक डाउन एंड कॉल ऑफ, लुक आफ्टर, लुक फॉर, पिक अप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, पुट ऑन, टेक ऑफ, टेक आउट, गेट अप, चेक इन, चेक आउट, मोर. एंड ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1000 ऐसी ही छोटी छोटी वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं इंग्लिश बोलने में. दोज आई हैव कलेक्टेड एंड आई हैव रिटन इन माई नोटबुक, एंड हर दिन मैं उनमें से कुछ ना कुछ यूज़ करके अपने वीडियो में ज़रूर डालूँगी. एंड इससे मेरी प्रैक्टिस गेट अप. मॉर्निंग में जब हमारा सुबह जब होती है, राइस को गेट अप बोलते हैं. सो व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? ओके, तो आप रिप्लाई कर सकते हो आई राइज एट 6 AM या फिर आई गेट अप एट 6 AM. चेक इन एंड चेक आउट. होटल में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, चेक इन, और दूसरा चेकआउट वहाँ से जब हम रवाना होते हैं. ओके, सो चेक इन के लिए आप बोल सकते हो डिड यू चेक इन एट द होटल, एंड चेकआउट के लिए बोल सकते हो व्हाट टाइम वी नीड टू चेक आउट ऑफ द होटल.
कॉल ऑफ, इट मीन्स कैंसिल कर देना. डिड दे कॉल ऑफ द मीटिंग? यस, दे कैंसल्ड इट बिकॉज ऑफ बैड वेदर. सो पुट, आप एक वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड लगाना, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट. भैया आप मेरे लिए सब्जी लेते आओगे? कैन यू प्लीज पिक अप ग्रोसरीज फॉर मी? यस, आई विल कलेक्ट देम ऑन माई वे होम. नाउ नेक्स्ट है कि किसी चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, यार मेरी चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई यू लुकिंग फॉर योर कीज? येस, आई कांट फाइंड दैम. तो मैं ये बता रही हूँ, लुक फॉर, सर्च कर रहे हैं, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? आई यू लुकिंग फॉर योर मोबाइल? येस, आई कांट फाइंड दैट. अगर आपको कोई स्विच बंद करना है, लाइक स्विच ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है, पंखा बंद करवाना है, कैन यू प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन, या फिर आपको लाइट ऑफ करवानी है, कैन यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, या फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि क्या तुमने ओवन को ऑफ कर दिया था? डिड यू टर्न ऑफ द ओवन? एंड यू कैन रिप्लाई येस, आई स्विच्ड इट ऑफ आफ्टर बेकिंग. मतलब बेक करने के बाद ही मैंने उसको बंद कर दिया था. इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू यूज़ दैम इन योर डेली लाइफ. टर्न ऑन मतलब कि लाइट जलाना, पंखा चलाना, टीवी चलाना. जैसे कि मुझे पहले दिक्कत आती थी, लेकिन अब मुझे पता चला, मुझे बहुत खुश हुई ये जान के कि कितना आसान हो जाता है. चीज़ें पता होती है तो डाउट नहीं रहता मन में. तो पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी क्या यूज़ करूँ. तो पंखा चला दोगे प्लीज़? कैन यू प्लीज़ टर्न ऑन द फैन? क्या आप टीवी चला दोगे प्लीज़? कैन यू प्लीज़ टर्न ऑन द टेलीविज़न? क्या आप लाइट जला दोगे प्लीज़? कैन यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट्स? येस, आई विल स्विच देम ऑन. टेक आउट का मतलब होता है थ्रो आउट या थ्रो अवे. एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश? येस, आई विल थ्रो इट अवे. सबसे ईजी, जब फ़ोन को चार्जर में लगाना होता है तब हम नहीं समझ में आता है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. चार्जर को स्विच में लगाना है तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. आज मुझे इसके बारे में पता चला कि इसको बोलते हैं प्लग इन करना और प्लग आउट करना. ठीक है, जैसे कि अगर लैपटॉप चार्ज करना है तो चार्जर प्लग इन करना पड़ेगा, तो इसलिए बोलते हैं प्लीज़ प्लग इन द चार्जर टू चार्ज द लैपटॉप. इसकी जगह आप बोल सकते हो प्लीज़ प्लग इन द चार्जर टू चार्ज द मोबाइल. It's easy. Please plug out the charger from the switch. And it is so easy. आज मुझे पता चला इसलिए मैंने इसे शेयर किया. इससे पहले पता होता तो शायद मैं शेयर भी ना करती. Put on your shoes, put on your clothes. Second है take off your shoes, take off your clothes. I just want to say कि इससे पहले मुझे पता है बहुत लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, बट मुझे नहीं पता था कि कपड़े पहनते हैं तो उसको पुट ऑन क्यों बोलते हैं. मुझे नहीं पता था टेक ऑफ क्यों बोलते हैं. पुट ऑन मतलब आप कोई चीज़ अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर रखने वाले हो ना, तो मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया. टेक ऑफ, ऑफ मतलब अपनी बॉडी से दूर, टेक मतलब ले जाना, तो मतलब कहीं ना कहीं रिमूव करने को टेक ऑफ कहते हैं. पुट ऑन यानी कि आप कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं कि शी पुट ऑन सम वेट, मतलब वो कुछ वेट पुट कर रही है, मतलब वेट बढ़ रहा है उसका. तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ हम अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो उसे पुट ऑन की फॉर्म में ले लेते हैं. शूज़ पहनना है तो पुट ऑन योर शूज़, कोई ड्रेस पहनी है तो पुट ऑन दिस ड्रेस, दिस विल लुक नाइस ऑन यू. सो इट्स ईजी वे. नेक्स्ट इज टर्न डाउन. इट मीन्स वॉल्यूम को डिक्रीज कर देना. कैन यू टर्न डाउन द म्यूजिक प्लीज. नेक्स्ट है टर्न अप. इट मीन्स वॉल्यूम को बढ़ा देना. कैन यू टर्न अप द म्यूजिक. लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है कि आप होप कर रहे हो, कोई चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वेकेशंस? येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Call back, it means return a phone call. For example, can you please call me back? Yes, I'll return your call. Okay, have a good relationship with. तो इसके लिए हम बोलते हैं get along. For example, क्या तुम्हारे पड़ोसियों के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं? Do you get along with your neighbors? तो हम reply कर सकते हैं yes, I have a good relationship with them. Now next is run out of. That means have no more of something. For example, दुकानदार से पूछ रहे हैं कि क्या शुगर ख़त्म हो गई है क्या. डिड यू रन आउट ऑफ द शुगर. इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं. या फिर मैं बोल रही हूँ कि यार मेरी बुक्स ख़त्म हो गई हैं सारी की सारी, अब पढ़ने को कुछ भी नहीं है, तो कोई और मुझसे पूछ रहा है कि आई यू रनिंग आउट ऑफ योर बुक्स. द नेक्स्ट इज लुक अप. लुक अप का मतलब भी सर्च फॉर. पहले हमने लुक ऑफ देखा था एंड लुक फॉर मतलब सर्च फॉर. अब हम देख रहे हैं लुक अप, इसका मतलब भी सर्च करना होता है. कैन यू प्लीज लुक अप दैट वर्ड. Yes, I'll search for it. So it's very easy.
डोंट बी कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट इज ब्रिंग बैक, इट मीन्स रिटर्न करना। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी बुक को वापस कर दिया क्या? डिड यू ब्रिंग बैक द लाइब्रेरी बुक? येस आई रिटर्न दैट। होल्ड ऑन मतलब कि वेट कराना या करना। फॉर एग्जाम्पल कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई एम नॉट क्वाइट रेडी। इज पुट ऑफ, इट मीन्स पोस्टपोन कर दी। डिड, क्या उन्होंने शादी को पोस्टपोन कर दिया? डिड दे पुट ऑफ द वेडिंग? एंड इसमें ना पुट ऑन और पुट ऑफ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होता है कि पुट ऑन वहाँ पर हम बोल रहे थे कि पुट ऑन योर शूज़, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पोस्टपोन कर दिया। तो हाँ, यही डिफरेंस है, यही याद रखना है। टेक इन, इसका मतलब होता है एब्जॉर्व करना या अंडरस्टैंड करना। कैन यू टेक इन वॉट आई जस्ट सैड? येस आई गॉट इट एवरीथिंग। गेट बाय, इट मीन्स आप बहुत ही कम रिसोर्सेज में सर्वाइव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इज इट हार्ड टू गेट बाय ऑन लो इनकम? येस इट्स टफ टू सर्वाइव। शो अप, इट मीन्स अपीयर होना या आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही शो अप एट द पार्टी? कैरी आउट, इट मीन्स एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू कैरी आउट योर प्लान? गो आउट, इट मीन्स सोशलाइज करना। शैल वी गो आउट फॉर द डिनर टुडे? येस लेट्स सोशलाइज। पॉइंट आउट, इट मीन्स इंडिकेट करना। कैन यू प्लीज पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स? टर्न इन, इसका मतलब होता है सबमिट कराना। Did you turn in your assignment? Yes, I submitted them. Get over, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से रिकवर हो चुके हो। For example, have you got over the fever? Yes, I have recovered from it. Give up, इसका मतलब होता है क्विट कर देना। Did you give up on your dreams? Go on, इसका मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यू रखनी है। For example, आपने सुना होगा The show must go on. Okay, look out, इसका मतलब be cautious, सावधान रहना। तो जैसे आप बोल सकते हो कि ट्रैफिक में क्या मुझे देख के चलना चाहिए? शुड आई लुक आउट इन द ट्रैफिक? तो आप बोलोगे येस, बी कॉशियस व्हेन क्रॉसिंग। लेट डाउन, इट मीन्स डिसअपॉइंट करना। डोंट लेट डाउन योर पेरेंट्स। ड्रॉप ऑफ, इट मीन्स डिलीवर करना। विल यू ड्रॉप ऑफ द पैकेज? अप, इट मीन्स रेस करना। दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन वेल। लुक इनटू, इट मीन्स इन्वेस्टिगेट करना। हैव यू लुक्ड इनटू द मैटर? येस आई इन्वेस्टिगेटेड इट। गो ओवर, इट मीन्स रिव्यू करना किसी चीज़ को वापस से जा करके। डिड यू गो ओवर द प्रेजेंटेशन वन मोर टाइम? ब्रेक डाउन, इट मीन्स स्टॉप वर्किंग, कोई काम करना बंद कर दे कोई चीज़, तो ब्रेक डाउन। डिड योर कार ब्रेक डाउन? टेक ऑफ, इसका मतलब लीव द ग्राउंड एंड फ्लाई। डिड द प्लेन टेक ऑफ ऑन टाइम? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वैसे इसको कोई नहीं देखता, आई नो, बट ये यूज़फुल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अक्सर रिवाइज करते वक्त उतना इफेक्टिव रिवीजन नहीं करती हूँ, एंड वीडियो बनाने की बात आती है तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा जोर देती हूँ अपनी लर्निंग पे। एंड इस तरीके से मेरा रिवीजन हुआ, लर्निंग प्रोसेस भी हुई, एंड इट्स काइंड ऑफ टीचिंग एंड आई लव इट।